ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دوسری یہ بات جو آپ نے کی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کو میں کنٹینیو تھوڑا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں جناب مولوی سیمی کول صاحب۔ یہ جو بندے پرانے ہیں فیس بک وغیرہ یوز کرنے والے، ان کو پتا چل جائے گا مولوی سیمی کول کیوں میں کہتا ہوں۔ اس کا آئی ڈی ہے ای میل آئی ڈی، جس پہ اس نے سارے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں سیمی کول۔ تو بہرحال کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے اپنا نام خود رکھا ہوا ہے سیمی کول۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ گروپ میں آیا، اس سے پہلے وہ گروپ کے اندر یہ جمبا صاحب جو ہیں وہ اپنا کوئی گفتگو کر رہے تھے سوال و جواب کی۔ تو اس کے بعد آ کے وہ بات دیکھیں کیا کر رہا ہے، جو جری اللہ بھائی بات کر رہے تھے وہی میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے ہمیں احمدی مسلمانوں کو جو خلافت کو مانتے ہیں کہ تم جمبا صاحب کی بیعت کر لو کیونکہ تم نبوت کو جاری مانتے ہو۔ میں نے سوال کیا بھائی آپ جمبا صاحب کی پہلے خود بیعت کر لینا، پھر ہمارے سامنے ان کو سچا ثابت کر دیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، منکر تو تم لوگ ہو۔ ہم تو مانتے ہیں جو بھی بندہ دلیل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم جمبا صاحب سے بھی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ دلیل سے سچا ثابت کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ وہ بہرحال بڑی سخت اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے ماننے والے، تو وہ تو گفتگو نہیں کرتے، وہ کبھی بھی دلیل کیا وہ بات ہی نہیں کرتے۔ میرے ساتھ تو کبھی آج تک کسی ان کے بندے کی بات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جناب آپ اپنا آپ کیوں ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے۔ یہ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کوئی جوتوں کی دکان ڈال لے اور ہر وقت بیٹھ کے یہ کہتا رہے کہ باٹا کے جوتے، بس نا نعرہ ہی وہ یہ لگائے، پاکستان میں لگاتے ہیں نا آوازیں ہاکر، تو وہ نعرے یہ لگائے بھئی باٹا کے جوتے بڑے گندے ہیں اور سروس کے جوتے بڑے گندے، وہ دن رات اس کا کلمہ یہ ہو کہ باٹا کے جوتے گندے ہیں اور سروس کے گندے ہیں، اور کبھی یہ نہ کہے کہ میرے جوتے اچھے ہیں۔ بالکل ان کا حساب وہ ہے کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، تو ہمیں اپنی طرف بلاؤ۔ اگر آپ وہابی ہیں، اہل حدیث آپ کو کہیں، جو بھی آپ محمدی کہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، آپ کہیں جی باقی سارے تو جھوٹے ہیں فرقے اور گمراہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے صادق کے مطابق جہنمی ہے اور ہم جنتی فرقہ ہے، آپ ہماری طرف آؤ تو ہم پھر آپ کی بات سنیں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مبشر حسین بریلوی صاحب کو دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ ویڈیو احمدی مسلمانوں کے خلاف میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جناب وہ سب سے زیادہ ویڈیو میں سے کون سی اور کتنی ویڈیو آپ نے اس بارے میں بنائی کہ جی باقی فرقے تو گمراہ اور جہنمی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور ہم بریلوی مسلک یا فرقے والے جو ہیں ہم وہ جنتی فرقہ ہیں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی ہے، آپ احمدی ہماری طرف آ جاؤ تو پھر ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ جائیں جا کے ڈھونڈ لیں، آپ کو اس کے چینل میں اگر 10,000 ویڈیو بھی ہوں گی تو ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں ملے گی۔ تو یہ حیران کن بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو وہی مسیح اور مہدی مانتے ہیں جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب اس امت پر بہت برا وقت آ جائے گا اور ایمان سریہ پر چلا جائے گا اور قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور مسجد عالی شان ہوگی لیکن اس میں جو ہے وہ ایمان باقی نہیں رہے گا، تب ایک بندہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا تاکہ وہ ایمان کو سریہ سے واپس لائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو مانا ہے اور ہمارے روحوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر وہ ایمان واپس آ گیا ہے۔ ہم انہی میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہم بریلویوں میں سے، وہابیوں میں سے، شیعوں میں سے اور ان میں سے ہی نکل کر ادھر آئے ہیں۔ اور آپ وہ لوگ جو احمدی مسلمان ہو گئے ہیں ان کے باقی رشتہ داروں کی حالت دیکھ لیں، کوئی جواریہ ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی چور ہے، کوئی اور ڈاکے مارتا ہے، اور وہ جو بندہ احمدی مسلمان ہو جائے اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ ایک ہمارا رشتہ دار ہے، اسے کسی نے کہا جی تم دلیل دو، وہ غیر احمدی تھا، وہ دیوبندی تھا اور بڑے کٹر دیوبندی ہیں ابھی بھی اس کے سارے رشتہ دار۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کیوں احمدی ہو گئے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ٹی وی ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس قرآن حدیث سے دلیل بعد میں دوں گا، میں تمہیں جھٹکی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں یہ ٹی وی ٹھیک کر لیتا ہوں، تو میرا ٹی وی خراب ہوتا ہے میں اس کے پاس لے جاتا ہوں جی اس کو ٹھیک کر دو، وہ 2 منٹ لگاتا ہے ٹی وی ٹھیک کر دیتا ہے، وہ 10 دفعہ میں نے تجربہ کیا ہے وہ بندہ ٹی وی ٹھیک کر دیتا ہے۔
तो मैं मान लेता हूं वाकई वो सही कहता है, वो टीवी ठीक करता है। अब एक बंदा दुनिया में आता है कि वो कहता है मुझे अल्लाह ने दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा है। एक बंदा शराब पीता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी कुरान नहीं पढ़ता, कभी रोजा नहीं रखता, कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, वो उस बंदे को मानने के बाद 5 वक्त का नमाजी बन जाता है, तहज्जुद पढ़ने लग जाता है, कुरान पढ़ता है, कभी चोरी नहीं करता, कभी रिश्वत नहीं लेता, कभी गलत कारी नहीं करता। तो क्या उस दावे का उस बंदे का दावा गलत हो सकता है कि जिसको मानने के बाद उसकी जिंदगी की इस्लाह हो गई? तो वो कहता है तुम मुझे अपनी तरफ बुलाने आए हो कि जब मैं शराब पीता था, जब मैं बदकारियां करता था, जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, जब मैं हर दुनिया का बुरा काम करता था, तब तुम लोग मेरे पास नहीं आते थे मुझे समझाने के ये गलत काम छोड़ दो और अल्लाह की तरफ आ जाओ। उस बंदे के मानने वालों ने मुझे ये बातें समझाई और मैंने उसकी बात मानी। आज मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता और कभी गलत काम नहीं करता, कभी रिश्वत नहीं लेता, तो तुम मुझे कहते हो वो वापस उसी गंद में चला जाऊं? तो ये है वो तब्दीली जो उस मसीह और महदी ने पैदा की। और उसके शुरू के मानने वालों के बारे में इनके अकाबर ने लिखा कि अगर इस्लाम देखना हो तो जाके कादियान में देखो। आज इस्लाम को अगर कोई बंदा समझा है तो वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम समझे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाद में जमात की मुखालफत में मजमून लिखे हैं, तकरीरें की हैं। तो हम तो दुनिया को कहते हैं कि हम वो 73वां फिरका है जिसकी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि जब इस उम्मत में फिरका दर फिरका उम्मत हो जाएगी तो उसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे, यानी कि अक्सरियत जहन्नमी हो जाएगी और एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नती होगा। साहबा ने पूछा कि उनके हालात क्या होंगे या उनकी अलामत क्या होगी? तो आपने पूछा कि जो मेरे और मेरे साहबा के हालात हैं यही हालात उनके हो गए। आज आप देख लें, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में साहबा को मारा नहीं जाता था उनके ईमान की वजह से? क्या उनकी मस्जिदें नहीं गिराई जाती थी? उनको अल्लाह की इबादत करने से मना नहीं किया जाता था? सारा कुछ कुरान में मौजूद है। अगर कोई हदीसों को नहीं मानता, दुनिया आज रंग बिरंगी आई हुई है, कोई हदीस को नहीं मानता, कोई किसी चीज को नहीं मानता, चलो कुरान को तो सारे मानते हैं ना। कुरान में अल्लाह ताला ने हालात बयान किए हैं कि कैसे बदबख्त वो लोग हैं जो इंसानों को खुदा की इबादत से रोकते हैं। तो देख लें आज कौन लोग हैं जो इबादत से रोकने वाले हैं, कौन मस्जिदों से कलमे और मीनार गिराने वाले हैं, वो कौन बदबख्त है जिनको अल्लाह और रसूल का नाम पढ़कर तकलीफ होती है। क्या अल्लाह और रसूल का नाम पढ़कर जिसको तकलीफ हो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जैसा हो सकता है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या आपके सहाबा को अल्लाह का नाम पढ़कर तकलीफ होती थी या खुशी होती थी? सहाबा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाक नाम पढ़कर खुशी होती थी या तकलीफ होती थी? तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह का नाम पढ़ें, कलमा पढ़ें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम पढ़ें तो हमें तकलीफ होती है। तो आप सोचें सुनने वाले कि वो 73वां फिरका जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हालात मेरे जैसे होंगे, क्या वो जमात अहमदिया नहीं? क्या सारे फिरके मिलकर जमात अहमदिया के खिलाफ वही काम नहीं कर रहे जो मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के खिलाफ करते रहे हैं? तो हम तो अपनी तरफ बुलाते हैं, हम ऐलान करते हैं कि हम ही वही 73वां फिरका है। और ये सारे फिरके जितने भी हैं, ये सारे फिरके उस सीधी राह से हटे हुए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकड़ी से लकीर बनाकर खींचा। लकीर खींचकर उन्होंने फिर साइड पे छोटे छोटे निशान लगाए और साहबा ने पूछा ये क्या है? आपने फरमाया ये मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, और ये 7 छोटे छोटे रास्ते जो हैं ये वो हैं जो मुझसे अलग हो गए। इसलिए सीधा रास्ता एक ही हो सकता है। इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है कि कोई बंदा कहे कि सारे ही रास्ते सीधा हैं, एक रास्ता मशरिक को जाए, एक मगरिब को, एक शुमाल को, एक जनूब को, और एक बंदा कहे जी ये सारे रास्ते ठीक हैं। तो इनका हाल वो है, इनसे पूछें जी आप मुसलमान किसको समझते हैं? जी देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, चकड़ालवी, गामदी और सारे ही जो हैं वो ठीक हैं। तो इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी मुनाफकत और मुमकिन ही नहीं है कि आप एक बंदा कहता है कि पहले 3 खुलाफा जो सबसे कभी अकाबिर साहबा में से थे वो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो गासिब थे, वो काफिर हो गए थे, माअज़ल्लाह मुर्तद हो गए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और उन्होंने हजरत अली का हक गस्ब किया, वो भी मुसलमान है। और दूसरा फिरका कहता है कि नहीं, जो ऐसी बात कहे वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुसलमान ही नहीं। वो दोनों मुसलमान हो गए हैं। एक बंदा कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और नूर है, उनको जो बशर कहे वो काफिर है। दूसरा बंदा कहता है जो उनको बशर ना समझे वो काफिर है, क्योंकि कुरान में लिखा है वो बशर है। अब ये दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? तो ये बंदे, वो लोग जो आपको ये बात सिखाते हैं कि सारे ठीक हैं, वो तो सबसे बड़े दुनिया के झूठे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया है कि 73 में से एक जन्नती होगा, तो ये तो है रसूल सादक की जुबान।
एक सच्चे इंसान की जुबान के अगर 70 लोग मुख्तलिफ बातें कहें तो उनमें से एक ही ठीक हो सकता है। ये कहते हैं नहीं 72 ठीक है और एक गलत है। तो ये फैसला अब अवाम के अंदर भी बाशऊर लोग मौजूद हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, इनकी बातें भी सुनते हैं। कल मैं इसका प्रोग्राम देख रहा था मुबशर हुसैन बरेलवी का, वहां बल्कि जब मेरी लाइव से बात हो रही थी उसी वक्त उसने लाइव चलाया हुआ था, उसमें एक गैर अहमदी, जो अहमदी भी नहीं था बंदा, लंबी लंबी दाढ़ी उसने रखी थी, अहले हदीस था या पता नहीं किस फिरके का था, तो वो उस प्रोग्राम के अंदर बैठ के कह रहा था कि तुम तो मुफ्ती कैसे हो, कुरान ही गलत पढ़ रहे हो, कुरान तो ठीक पढ़ना सीखना था जब मुफ्ती बने हो। उसके साथ बैठा हुआ उसका असिस्टेंट मां बहन की गालियां निकालना उसको शुरू हो गया। ये इनकी दीन इस्लाम की तबलीग है और वो रिकॉर्डिंग मौजूद है और इनको बिल्कुल रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती कि बंदा कुछ शर्म कोई गैरत खा के वीडियो डिलीट कर दे। वो वीडियो भी पड़ी हुई है उधर ही, हर बंदा जाके वहां देख सकता है कि कुरान गलत पढ़ा और एक बंदे ने प्यार से समझाया कि मुफ्ती साहब कुरान तो ठीक पढ़े, तो उसके साथ बैठे बंदे ने मां बहन की गालियां उसको देनी शुरू कर दी और इसने उसको कोई रिमूव नहीं किया, कोई ब्लॉक नहीं किया, कोई बैन नहीं किया। तो अवाम जो है वो इतनी भी अंधी नहीं है, माना कि बेशुमार अवाम लिखना पढ़ना नहीं जानती, लेकिन लोग देखते हैं, हमें भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, सबको देखते हैं, वो इनके रवैयों को भी देखते हैं, इनकी तबलीग को भी देखते हैं। हम भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में जिसके चैनल पर भी होगा हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात आपके सामने पेश करेंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं यहाँ बैठे कि आप इतराज करते रहें गैर अहमदी और हम आपके जवाब देते रहें। नंबर एक, हम अपनी तबलीग पेश करेंगे, जो तालीम हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं वो तालीम पेश करेंगे, ताकि अवाम को पता चले कि इनके ख्यालात में, इनके तसव्वुरात में और हमारे तसव्वुरात में क्या फर्क है। फिर जो ये इल्जामात लगाते हैं उसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन हम इनका भी जो है ना वो कथा चट्टा खोलकर आपको दिखाएंगे कि खुद इनके अपने अकायद कैसे हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं जी हम खत्म नबूवत के मुनकर हैं। ये सिर्फ एक फिरके बरेलवी के बारे में मैं बात करूं कि वो बरेलवी फिरका जो है वो ये मानता है, ये बात समझने की है, छोटी सी बात है, इसकी तफसीली प्रोग्राम इस पर हम अलग करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे औलिया, जिनको ये कहते हैं बाबे, उनके सामने लोहे महफूज हर वक्त खुला हुआ पड़ा है, वो जब चाहें जो चाहें उसमें से देख ले। नबूवत इससे बहुत छोटी चीज है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी मुखालिफ ने आके पूछा कि फलां बात हमें बताएं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह तक इंतजार करते रहे। उन्होंने माअज़ल्लाह मजाक उड़ाया कि अब घड़ते नहीं कोई वही, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया जब तक वही नहीं आई। यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोहे महफूज खुला हुआ नहीं पड़ा था। और ये अपने बाबों के बारे में, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, ये कहते हैं कि उनके सामने लोहे महफूज खुला हुआ पड़ा है। लोहे महफूज वो जगह है कि जिसमें दुनिया जहान का अजल से अबद तक का हर इल्म मौजूद है, और कुरान इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि उस लोहे महफूज का एक छोटा सा हिस्सा है। तो कुरान तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसा में नाज़िल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ना लोहे महफूज से देख लिया। तो इससे साबित हुआ, इसकी तफसील हम बाद में हवालों के साथ, असल स्कैन के साथ पेश करेंगे और इसको अच्छी तरह लोगों के दिमाग में बिठाएंगे कि ये मसला क्या है। लेकिन समझने की बात यह है कि इनका जो दावा है अपने वलियों और बाबों के बारे में, ये वाला, ये नबूवत से 1000 गुना बड़ा दावा है। क्योंकि नबी तो वो इंसान होता है जिसके साथ अल्लाह ताला कभी कभी कलाम करता है, उसको वही कहते हैं। वही 24 घंटे लगातार तो नहीं आती, नहीं तो कुरान जो है वो 23 साल के अंदर कोई 1000 जुज का कुरान होता। लेकिन कुरान तो देख लें, छोटी सी किताब है, और जाहिर बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्फा से फरिश्ता वही लेकर आता, सारी सूरत हाल लिखी हुई है। लेकिन इनके बाबों का दावा है और ये मानते हैं, और इनकी किताबों में लिखा हुआ है वह दावा, कि वो उनके सामने लोहे महफूज खुला पड़ा है। किसी ने पूछा क्या जो बाबे हैं, जो औलिया हैं, वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं? तो अल्लाह उनको कुछ ऐसे बताता है? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, उनको दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अल्लाह ने उनको इख्तियार दे दिया हुआ है लोहे महफूज के ऊपर। जो अक्लमंद बंदा है, जिसके अंदर जरा सा भी शऊर बाकी है और जो पढ़ा लिखा है, अगर इस बात पर गौर किया जाए तो यह नबूवत से 1000 गुना बड़ा दावा है। अब खत्म नबूवत कहां यहां रह गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजारों के हिसाब से बाबे ये मानते हैं, और हर बाबे के बारे में इनका यही अकीदा है कि उसके सामने लोहे महफूज खुला हुआ पड़ा है। छोटी छोटी सी बात की कर दे तो ये उसको नबूवत का दावा बना के वीडियो ठोक देते हैं कि जी फलां बंदे ने वीडियो दावा कर दिया है नबूवत। क्यों जी? उसने कहा जी अल्लाह ने मुझे भेजा है। भाई अल्लाह ने सारी दुनिया को भेजा है, वहां लिखा हुआ है दज्जाल को भी अल्लाह भेजेगा। कभी हदीसों की किताब तो पढ़कर देखें, हदीसों की किताब में लिखा हुआ है कि दज्जाल को मबूस किया जाएगा, तो अल्लाह ने दज्जाल को नबी कह दिया है।
اتنی عقل رتی برابر ان کے اندر ہے نہیں، اور چلے ہیں احمدی مسلمانوں کے خلاف گفتگو کرنے. تو یہ مختصر ساتھ ایک تھی گفتگو، انشاءاللہ مزید آگے اس پر روشنی ڈالیں گے کسی وقت.